لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ معذاللہ کی امام علی مقام پیاس کی شدت برداشت کر رہے تھے، مجبور تھے معذاللہ، بے سہارا تھے معذاللہ۔ جس کا سہارا خدا، جس کا سہارا نبی، جس کا سہارا نبی کی شہزادی، جس کا سہارا مولا علی ہو، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ وہ خود ہی سب کے سہارا بن کر کے کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کو کٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی دوسروں کا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ لوگ دعائیں پہ دعائیں مانگے جا رہے ہیں، امام حسین قبولیت کا دروازہ کھلواتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آؤ دیکھو، کہتے ہیں کربلا کے میدان میں امام حسین اگر چاہتے تو پانی لے لیتے، لیکن مجبور تھے، پانی نہیں پایا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ نہیں پانی پایا۔ قرآن ہے مولا تیری رضا کی تمنا ہے، پروردگار میں کربلا میں پانی پینے نہیں آیا، میرے نانا نے بچپن میں بتایا تھا بیٹا حسین تجھے 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھا جائے گا۔ میں پہلے ہی سے صابر گھرانے کا صبر کرنے والا شہزادہ ہوں، مجھے پانی کی تمنا ہی نہیں ہے۔ اگر میرے حسین فرما دیتے اے آسمان پانی برسا دے تو سمندر کی طرح پانی برستا، زمین سے شعلے اگلتے، وہ بھی شعلوں میں سے بھی پانی نکلتا۔ اگر حسین وہ فرما دیتے کہ یہ پانی آ جا تو چاروں طرف سے جل ڈھل ہو جاتا، اتنا پانی ہو جاتا۔ اور کربلا کے میدان میں امام حسین پر رکاوٹ اللہ کی طرف سے تھی، نہیں حسین نہیں، پانی نہیں پینا تمہیں، پانی لینا بھی نہیں تمہیں۔ اگر سکینہ پیاس کی شدت سے تڑپے، پانی نہیں پینے دینا۔ اگر علی اکبر کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جائیں، پیاس کی شدت کی طلب اتنی زبردست ہو، پیاس پانی کی طلب اتنی زبردست ہو کہ حلقوم میں کانٹے پڑ جائے، پھر بھی پانی مت پینا۔ ارے جام کوثر کس کے لیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہارے لیے جام کوثر ہے، تم جسے چاہنا پلانا، خود پینا، خود پلانا۔ جام کوثر کس کے لیے ہے؟ جام کوثر امام علی مقام کی ملکیت کا نام ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں ہے، سرکار امام علی مقام کربلا کے میدان میں ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا امام حسین پانی نہیں پا سکے، مجبور، ہوا میں اڑ رہا ہے، ابھی بتاتا ہوں رک جا، ہوا میں اڑ رہا ہے، اڑ لے اڑ لے۔ کتنی طاقت تیرے گرووں نے دی ہے، تیری دیویوں نے دی ہے، تیرے دیوتاؤں نے دی ہے، جتنی طاقت تیرے پاس ہے سب استعمال کر لے۔ ارے آسمان میں چاہے گم ہو جا، چاہے زمین میں گم ہو جا، ارے یہ تو سوچ اور یہ جان کہ یہ زمین بھی میری ہے، یہ آسمان بھی میرا ہے، تو جہاں بھی رہے گا یہ حسین کا لاڈلا اجمیری خواجہ نہیں جائے گا، اس کی کھڑاؤں جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اب یہی تو کہا خواجہ اجمیری نے، ارے اسی خواجہ کے لاڈلے نا سرکار، اسی خواجہ کے لاڈلے تو سرکار منور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے دربار کا جو ایک گھٹ پانی پا جائے اللہ اللہ، اس کی قسمت کا کیا حال ہے۔ خواجہ نے کہا اے جے پال کہاں اڑ رہا ہے؟ ہوا میں اڑ رہا ہے، خواجہ کو پاور دکھا رہا ہے۔ جس کی حکومت چپے چپے پر ہو، جس کی حکومت پتے پتے پر ہو، جس کے نانا کی لائی ہوئی نماز پڑھی جائے، جس کے نانا پر اترا ہوا قرآن پڑھا جائے، جس کے نانا کا خطبہ جن و ملک گائے، جس کے نانا کا ترانہ آسمان کے چرند و پرند، زمین کے چرند و پرند گائے، اس کے اوپر تو دکھا رہا ہے کہ میں پاور والا ہوں، امام علی مقام کا شہزادہ، ہندوستان کا راجا، کہا جاؤ ایک کھڑاؤں جا، اور جے پال کو لے کر کے کھڑاؤں اڑتی ہے۔ اب نبی کے لاڈلے کی زبان کی طاقت دیکھو، کہتے کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا۔ ارے نبی کے لاڈلے نے کہہ دیا تو چپل کو دوڑنے کی طاقت مل گئی، واہ 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 سبحان اللہ، کچھ نہیں ملتا۔ ارے نبی زادے تو جب کہہ دے، جہاں کہہ دے، جس گھڑی جیسے کہہ دے، جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اس لیے سرکار فرماتے حسین منی مانا میں حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ جس جگہ پر مصطفیٰ کی رحمت ہے وہی پر حسین پاک کی شفقت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ کھڑاؤں جاتی ہے آسمان میں، اور کھڑاؤں جانے کے بعد جے پال کے سر پر تڑ پڑ، جب تڑ پڑ کھڑاؤں جے پال کے سر پہ پڑنا شروع ہوئی، جے پال کی عقل جادو اب کچھ کام نہیں کر رہا، دل ملا کر رہ گئی جے پال کی جادوگری،
हिंदुस्तान के राजा की बारगाह में बैठे हुए हैं, उन्हीं की धरती में बैठे हुए हैं। उसूल ये है कि जिसका खाओ उसी का गाओ, अभी वक्त है उसी का गा लो, उसी की जन्नत है, उसकी जन्नत में जाना है। जिसके लिए बैठे हो तो मचल करके कहो सुभान अल्लाह, एक मरतबा बेदार होके कहो सुभान अल्लाह। मेरे सारे भाई यहाँ से वहाँ तक के सुभान अल्लाह। दिल मिला कर रह गई जयपाल की जादूगरी, अरे वो अताए मुस्तफा है सोच कर बोला करो। ये लोग सोचते नहीं, बोल देते हैं, और बोलने के बाद अपना खुद ही पोल खोल देते हैं, अपना खुद ही पोल खोल देते हैं। खाजा ने कहा खड़ाऊ जा, खड़ाऊ गई, और जाने के बाद मारना शुरू किया। तो जयपाल की समझ में कुछ नहीं आया, गिर पड़ अभी तक तड़फड़ की आवाज आ रही थी, अरे गिर पड़, अभी मिलने वाला। मचल के बोलो गिर पड़ जयपाल, गिर पड़, तेरी जादूगरी कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ मिलने वाला है। गिर पड़, जैसे कि जयपाल नबी के लाडले की कदमों में आकर गिर पड़ा, तो इमामुल अंबिया का लाडला कहता बोल जयपाल क्या चाहिए, बोल जयपाल क्या चाहिए। तो इमामुल अंबिया के लाडले से उस जयपाल जादूगर ने कहा कि अब मैं मान गया हूँ, जिसकी खड़ाऊ में ये ताकत हो कि जयपाल जैसे जादूगर को, उड़ने वाले आसमान में जादूगर को तड़पड़ मार के और गिर पड़ वाला समझ में समझा दे, मुहावरा समझा दे, तो पता ये चल गया। अब गिर पड़ने से ये मालूम ये हो गया कि यहाँ गिर पड़ने से बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ जो गिर पड़ता है उसी के तराने का डंका पूरी कायनात में बजता है। जो गिर पड़ता है उसी का नाम होता है, जो गिर पड़ता है उसी का चर्चा होता है, जो गिर पड़ता है उसी का नाम होता है, जो गिर पड़ता है उसी की शोहरत होती है, जो गिर पड़ता है उसी की अजमत का झंडा लहराया जाता है। जयपाल ने कहा अभी मौका गनीमत है, गिर पड़। इमामुल अंबिया के लाडले की बारगाह में जयपाल गिर पड़ा, और जैसे ही गिरा कहा हुजूर कलमा पढ़ा लीजिए, पहले इस्लाम में दाखिल करिए, पहले इस्लाम में, अब तो बहुत कुछ मिलने वाला है। जो लोग कहते हैं नहीं मिलता, कान खोल करके सुने, इस वाकये को अगर झुटला दे, कसम खुदा की अपनी पूरी जिंदगी नहीं, पूरी जिंदगी नहीं, हमारे अब्बा ने जो हमारे नाम की जमीन रखी है वो भी उसको दे दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई झुटला करके जो दिखाए कि ख्वाजा अजमेरी ने नहीं दिया, अरे वो जयपाल, अरे उस जयपाल को दीने रसूल दे दिया ख्वाजा अजमेरी, और दीने रसूल के साथ साथ एक ऐसा उसूल दिया कि जयपाल तेरा नाम जयपाल जोगी, जोगी क्या है, जयपाल जोगी। तुझको कितने भोड़े नाम से सब याद करते हैं, अब तू अब्दुल्ला बियाबानी बन जा। सुभान अल्लाह, करके बोलिए वाह, अरे जरा और चहक के बोलिए सुभान अल्लाह। है जयपाल, अब तू जयपाल नहीं, तेरी जयपाली हो गई पायमाल, अब तू अब्दुल्ला बन जा, अल्लाह का बंदा बन जा। अभी तक तू शैतान का पुजारी था, दौलत का पुजारी था, पृथ्वी का पुजारी था, अब खुदा की परस्तिश करने वाला बन जा। तो जैसे ही खुदा की परस्तिश करने के लिए जयपाल ने नबी का कलमा पढ़ा है, नाज़िले रसूल ने कहा जा, आज से मैं पूरी कयामत तक के लिए तुझे जिंदगी देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान की शिद्दत में तड़पाया जाए, बर्दाश्त कर लेना। हज़रत शहरबानो उम्मे रुबाब को तड़पाया जाए, बर्दाश्त कर लेना। लेकिन जब दीन की आबरू पर, अज़मत इस्लाम पर, मुस्तफा की शान पर कोई हमला करे तो कभी बर्दाश्त मत करना। अली अकबर देना पड़े तो दे देना, अली असगर देना पड़े तो दे देना, अली असगर देना पड़े, भाई हसन की निशानी कासिम की जवानी को पेश करना पड़े तो जैसे मैं कर रहा हूँ तुम भी पेश कर देना। इसलिए जो पेश कर देता है उसे जिंदगी दे दी जाती है, उसे ताकत दे दी जाती है, उसे इख्तियार दे दिया जाता है। जालिम यजीदी कहते हैं, एक आदमी ने कहा कि लोग कहते हैं और मैं भी कहता हूँ कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में इक़्तिदार के लिए गए थे। ना हजारों इक़्तिदार के लिए वो जाएगा जिसके नाना के लिए खुद खुदा फरमाए, ऐ महबूब अगर तुम फरमा दो तो सोने चांदी के ये सब पहाड़ तुम्हारे साथ बनाकर तुम्हारे साथ टहला दूं। ऐ महबूब अगर तुम कह दो तो मक्के के पहाड़, मदीने के पहाड़ सब सोने चांदी के हो जाए, तुम्हारे साथ साथ चले, जितनी जरूरत हो महबूब खर्च करो। जिसके
खजाना के लिए खुद खुदा पहाड़ों को सोना बनाए, वो कभी दौलत के लिए जाएगा करबला में, चंद अशरफियों के लिए जाएगा। इन जाहिलों की अक्ल मार गई है, इनके दिलों पर मुहर लग गई है। देखो जरा देखो, इमाम हुसैन ने कहा, इमाम हुसैन ने करबला की मैदान में शिकस्त नहीं खाई है, सतह उठाई है। नुसरत कामयाबी का झंडा अलंबरदार के हाथों में रहा है। लोग कहते थे पानी नहीं मिलेगा, अब्बास अलंबरदार का घोड़ा जिसे जुल्जनाह कहते हैं और हम सब उसे अपनी जबान में गाजी भी कहते हैं, जब गाजी उस जुल्जनाह पर इमाम अब्बास अलंबरदार सवार होते हैं, एक एड़ लगाते हैं, का दरियाए फुरात का पानी नहीं दिया जाएगा, लेकिन मेरे मौला अब्बास दरियाए फुरात पर खड़े होकर के घोड़े से कह रहे, घोड़े जितना पीना है पी ले, जितना पीना है पी ले। तो वफादार घोड़े ने कहा, ए मेरे आका, ए मेरे मौला, ए मेरे सवार, हरगिज़ नहीं हो सकता कि मैं यजीदियों में शुमार किया जाऊं। अब तक वफादारी दिखाई है, अब तक मोहब्बत पेश की है, अब तक अकीदत के नजराने लुटाए हैं। ए हुसैन के लाडले, ए हुसैन के चकीते, ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि हुसैनियों का बागी मैं बनूं। अरे कसम खुदा की, बागी तो मैं नहीं हूँ, बागी ये पानी है जो बगावत पर उतर आया है, मुझे पानी पीने के लिए कह रहा है। करबला के मैदान में ये पानी कह रहा है कि मुझसे पानी पी लो अब्बास भी। मौला अब्बास भी कह रहे हैं पानी पी लो। घोड़े ने कहा, ए मौला अब्बास, मैं पानी कैसे पी लूं, जरा पानी में नजर तो दे डालिए। इस पानी के अंदर इमाम मुस्लिम की लाश नजर आ रही है, इस पानी के अंदर सरकार मुस्लिम के दोनों बच्चों की लाशें नजर आ रही है, उस पानी को कैसे पी लूं। बहुत अच्छी बात है, मुबारकबाद आप लोगों के लिए, इस नकीब हिंदुस्तान का आप इंतजार कर रहे हुआ अब्दुल्ला बिन वहाब कल्बी को दे दूंगा, ज़ैनब के बच्चों को कुर्बान कर दूंगा, सबका सब पूरा के पूरा कुंबा लुटा दूंगा, लेकिन हाथ नहीं दूंगा। हुसैन, उस हाथ में क्या था? हाथ में कुछ नहीं था, हाथ में कुछ नहीं था। अरे हाथ ही बहुत कुछ बन चुका था, हाथ अज़मत इस्लाम बन चुका था, हाथ कुरान की शान बन चुका था, हाथ दीन मुस्तफा का नाम बन चुका था, हाथ खुदा के कानून का नाम बन चुका था। कहा ये खुदा का कानून है, इस कानून को तेरे हाथ में नहीं दूंगा। अगर ये हाथ इमाम हुसैन करबला के मैदान में यजीदियों और यजीदी के हाथ, यजीद के हाथ में दे देते तो कसम खुदा के सारे यजीदी कहते कि देखो इमाम हुसैन जैसी मोतबर शख्सियत ने मेरे हाथ में हाथ रख दिया है, अब मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, शोहरत मेरी होगी, ताकत मेरी होगी, जिना मैं करूंगा, लोग करेंगे, मानेंगे, इसलिए हुसैन का हाथ मेरे हाथ में होगा। इमाम हुसैन जानते थे कि यजीद जानी है, इमाम हुसैन जानते थे कि यजीद शराबी है, इमाम हुसैन जानते थे कि यजीद अय्याश मक्कार फासिक और फाजिर है। इमाम हुसैन की परवाह है तो फैशन की परवाह है, अगर घरों में परवाह है तो फिल्मी ड्रामों की परवाह है, सीरियल की परवाह है, सिटियाबाजी मक्कारी की परवाह है, लेकिन दीन रसूलुल्लाह की परवाह नहीं है। कल तुमसे सवाल किया जाएगा रोज़े महशर की जागुदार कुव्वत अव्वली पूछी नमाज कुव्वत, तुमसे नमाज के बारे में जब अल्लाह पूछेगा बताओ तुमने नमाजें कितनी पढ़ी है, तो उस वक्त तुम्हारा सर, हमारा सर, हमारी माँ बहनों का भी सर झुका हुआ होगा और मैदान महशर में हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा होंगी, उनका सर ऊंचा होगा, इसलिए कि उन्होंने भी इबादत के दामन को नहीं छोड़ा है और उनके